माय गॉड, मैं क्या पूछ रही हूँ? ये तो हैंड्स हैं. ओके, लेट्स डू समथिंग with the hands. Follow my instructions. Raise your right hand. Raise your left hand. Put down both your hands. Raise your both the hands. Now clap 2 times. Now you have to put your hand down. Give me high five. Hello students, welcome to the English class. And how did you enjoy this class? Have you enjoyed this activity? Of course, I can feel your excitement. You are very excited today. I am also very happy. You know why? Few years back, I wrote a letter to my friend, and guess what? I have got a reply. A letter. अब आप सोच रहे होंगे ईमेल के ज़माने में ये लेटर क्या कर रहा है, बट यू नो इस लेटर का मज़ा ही कुछ और है. ज़माना ईमेल का हो और हाथ में हो लेटर, वो भी हैंड रिटन, तो मज़ा ही आ जाता है. और वो फीलिंग्स, वो मिठास ईमेल में कहाँ. लेट्स ओपन दिस लेटर एंड शेयर some happiness together. I'm going to read out the letter. Hope you will enjoy. So, here is a letter. Let's share some happiness together. Dear friend, I have just received your letter because I have already written. I am glad to know that you have bought a new house and you have already shifted there. I too have some good news to convey. My sister has stood first in the exams. She has secured almost 80% marks. My father has given her a nice wristwatch. Do write to me regularly. Yours loving, Neetu. She is my friend. Very nice. कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत खुशी हुई. लेकिन ये तो लेटर की बात हुई. इस लेटर से हम आते हैं अपने टॉपिक पे और हम देखते हैं कि इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है जो हम आपको अभी कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाले हैं. आइए देखते हैं उसे भी. आपको नोटिस करना है वो वर्ड्स जो मैं अभी अंडरलाइन कर रही हूँ. नाउ नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड आई हैव अंडरलाइन इज रिसीव्ड. द सेकेंड वर्ड बाउट. द थर्ड वन शिफ्टेड. And next stood, and next secured, and the last one given. What do you think? What are these words? These words are the third form of verb. How we can use it? Just look at the circle word that I am going to circle in front of you. Just watch me. The word I have circled is have, has, कुछ आइडिया लगा कि ये क्या है? यही तो है आज का हमारा टॉपिक. बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल, जिसमें हम देखेंगे हैव और हैज़ का यूज़ V3 फॉर्म के साथ, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल. और हम इसको शुरू करेंगे. आपको बताते हैं इसके बारे में. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट. इट इम्प्लाइज
a strong connection with the present, but the action took place in the past. Three things you have to notice. One, connection between present and past. Second one, action that happened in the past, but the connection or the result you can see in the present. So friends, so students, we are going to learn प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वहाँ हम जानेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव को और साथ में जानेंगे पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म. अब तक आप वर्ब के पहले फॉर्म को और चौथे फॉर्म को और पांचवें फॉर्म को जान चुके हैं. आज आपके लिए एक नया फॉर्म है, वो है वर्ब का तीसरा फॉर्म. हम देखेंगे कि वर्ब अपने तीसरे फॉर्म में कैसे काम करता है इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. नाउ वी विल सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एट द एंड ऑफ दिस लेसन, learners will be able to use present perfect tense in different contexts. Learners will be able to differentiate verbs forms. Learners will correlate present with the past. Learners will create sentences relevant to their own lives. Learners will be able to write sentences for images using present perfect tense. Learners will be able to discover tense form. बच्चों, आपको तो पता ही है ये पूरी सीरीज़ टेंस की चल रही है. सो टाइम एंड टेंस में हम पढ़ रहे थे इनके टाइप्स को, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसमें प्रेजेंट टेंस को कंटिन्यू करते हुए हम इसके 4 टेंस को वन बाय वन जानेंगे. तो सबसे पहले हमने कौन सा टेंस पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं. सेकेंडली, व्हाट वी हैव लर्नड, वी लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और आपको याद है इसे और किस किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट. वेरी गुड. सो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो गेट रेडी, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो कन्फ्यूज़न है V1, V2, V3 ये है क्या, उसको दूर करते हैं. क्योंकि हमने टेंस में भी पहले भी जो पढ़ा उसमें V1, V5, V4 इन सारी चीज़ों की बात की. लेट्स गेट क्लियर कि ये होता क्या है, कैसे. आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एक जस्ट रिकॉल करते हैं उन चीज़ों को जो आपने कभी पढ़ लिया है, और उसको हम एक पूरे फॉर्म में देखते हैं कि V1, V2, V3 क्या है, किसको कहते हैं, और इसे किस तरह से हम टेंस में वन बाय वन यूज़ करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. ये V1 की लिस्ट है जहां हम लोग सिंपल सा वर्ब लिखा हुआ देखते हैं. गो, कम, ईट, गिव, रीड, स्टडी, वॉच, सिंग, टीच, राइट, टेक, लीव, एंजॉय, वॉक. अब हम इसका V2 यानी पास्ट टेंस बना रहे हैं, तो इन सभी का पास्ट टेंस वन बाय वन देख लेंगे और इसको हम बनाते भी जाएंगे. गो बिकम्स वेंट, कम बिकम्स केम, ईट विल बी एट और गिव गेव, रीड स्पेलिंग विल बी रीड बट पढ़ना है आपको रेड, स्टडी स्टडीड, वॉच वॉच्ड, सिंग sang, teach taught, write wrote, take took, leave left, enjoy enjoyed, walk walked. और अब हम आज पढ़ने वाले, मैंने आपको कौन सा टेंस कहा था आज पढ़ने के लिए? V3, जो पास्ट पार्टिसिपल भी है
सो आज उसको बड़े ध्यान से देखना है बच्चों, क्योंकि इसको यूज़ भी करना है आज। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस या एग्जाम्पल्स में ये चीज़ें यूज़ होंगी। सो ध्यान से देखते हैं और उसको हम लोग पढ़ते हैं। गो, वेंट, गॉन मीन्स ये इसका थर्ड फॉर्म है। किसका? गो का। कम, केम, कम, कम हो गया कम का थर्ड फॉर्म। ईट, एट, इटन। गिव, गेव, गिवन। रीड, रेड, रेड। मैंने पहले भी कहा था स्पेलिंग सेम होगा लेकिन प्रोनाउंस करते हुए वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। सिंग, sang, sung. Teach, taught, taught. Write, wrote, written. Take, took, taken. Leave, left, left. Enjoy, enjoyed, enjoyed. Walk, walked, walked. So ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ किया था V4, यानी वर्ब अपने ING के फॉर्म में था। वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब और ING के साथ होता है। हमने वर्ड्स में ING लगाकर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। गोइंग, कमिंग, ईटिंग, गिविंग, रीडिंग, स्टडीइंग, वॉचिंग, सिंगिंग, टीचिंग, राइटिंग, taking, living, enjoying and walking। और इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो फॉर्म को यूज़ किया था वर्ब्स के, V1 और V5 को। उसको भी देख लेते हैं हम। जो प्रेजेंट टेंस के थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है और वहाँ पे हम लगाते हैं S और ES। याद आया आप लोगों को? सो हम बनाते हैं अब। ये बन गया गो से गोज, कम से कम्स, ईट ईट्स, गिव गिव्स, रीड बिकम्स रीड्स, स्टडी स्टडीज। याद आ रहा है ना सब किया हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वॉच वॉचेस, सिंग सिंग्स, teach teaches, write writes, take takes, leave leaves, enjoy enjoys, and the last one walk walks। So ये कुछ ही वर्ब्स हैं। मैं तो यहाँ सारे वर्ब्स लिख नहीं सकती हूँ, आपके पास ग्रामर की बुक है, वहाँ और भी बहुत सारे वर्ब्स पड़े हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, हेल्पफुल है। उनको याद कर लीजिए, क्योंकि टेंस पढ़ने के लिए वर्ब फॉर्म्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। याद कर लेंगे ना आप? ओह, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, और याद भी करना पड़ता है। बट ये टेंस है, यहाँ थोड़ी सी मेहनत, लेकिन है तो मज़ेदार, पढ़ने में भी अच्छा। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि कुछ बच्चे बहुत ही सैड से हैं, पढ़ने के नाम पे थोड़ी सी उदासी। तो फिर कुछ मैजिक करते हैं, कुछ मैजिक। और जादू किसे नहीं पसंद है? तो चले करते हैं वो जादू, और करते हैं एक प्यारी सी एक्टिविटी। आपको अच्छा लगेगा, और नहीं भी अच्छा लगेगा तो बताएगा कौन? मुझे पता है इस एक्टिविटी में आप ज़रूर शामिल होंगे और इन्जॉय भी करेंगे। मैजिक प्रेजेंट परफेक्ट का, मैजिक प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होने वाले वर्ड्स का। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं ये एक्टिविटी विद द वर्ड्स मैजिकल। मैजिकल व्हाट? मैजिक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट। मैजिक में ढूंढना है वो वर्ड्स कि आखिर वो मैजिकल वर्ड्स है क्या। सो मैं अभी आपके सामने कुछ सेंटेंस पढ़ूंगी और आपको वो मैजिकल वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा कर पाता है। He has arrived here. Here is a blank.
She has gone out. It's also a blank word. You have finished your work. I have, another blank is there. I have taught you. They have left for school. We have spoken to him. Now it's a guessing time. So बच्चों क्या गेस किया, कौन सा ऐसा वर्ड है जो कॉमन है और वही मैजिकल वर्ड्स हैं जो इन सभी सेंटेंस में यूज होंगे और वो वर्ड सिर्फ एक ही वर्ड है. तो एक्टिविटी का नाम अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है कि ये एक्टिविटी है क्या, जस्ट अ मैजिकल एक्टिविटी. सो शुरू करते हैं. कौन सा वर्ड है? लेट्स फाइंड आउट द वर्ड. द वर्ड इज जस्ट. नाउ द एक्टिविटी नेम हैज बीन डिफाइंड, दैट इज मैजिकल जस्ट. और उसे हम कैसे देख रहे हैं? आइए बनाते हैं सारे सेंटेंस को. He has just arrived here. और यही वर्ड आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्योंकि आपका मैजिकल वर्ड ही है जस्ट. She has just gone out. Now you are getting my point? You have just finished your work. There is another word? No, of course not. It is only just. I have just taught you. They have just left for school. And we have just spoken to him. Now you are getting my activity. This is called magical just. यानी ऐसा काम जो जस्ट कंप्लीट हुआ है. हमने बात की थी काम फिनिश हो जाने की. सो बस अभी अभी फिनिश ही हुआ है. पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्ट ही ऐसा वर्ड है जिससे पता चलेगा कि काम अभी ख़त्म हुआ है. और भी ऐसे एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे जो इस चीज़ को आगे बताएंगे. द वर्ड इज येट, ऑलरेडी, recently, several times, never, always, today, often, so far, ever, etc. अब हम इस वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये कैसे काम करता है. He has come recently मीन्स वो रिसेंटली हाल ही में आया है. She has not gone yet. वो अभी तक गया नहीं है. The train has already left. ट्रेन जा चुकी है. I have read this book several times. So I have read this book several times. I have already told read will be pronounced as read. So I have read this book several times. You have never visited London. तुम लंदन कभी भी नहीं गए हो. My mother has always taken care of us. मेरी माँ हमेशा हमारी देखभाल करती है. So हम ये वर्ड्स जब बोल रहे हैं हमारी हिंदी चुका है, चुके हैं, चुकी है पे ख़त्म होती है और साथ में गया है, गए हैं, गई है पे ख़त्म हो रही है.
यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हुई कि सेंटेंस या तो चुका है, चुके है से ख़त्म होगा, या फिर या है या ये है से, यानी वो अभी नहीं गया है, ट्रेन पहुंच चुकी है, वो स्कूल जा चुका है, वो अभी नहीं आया है, और भी बहुत सारे वर्ड्स। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं हैज़ का यूज़, साथ में याद रखिएगा वो वर्ब का तीसरा फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। सो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। हमने बात की हैज़ और हैव के यूज़ की, साथ में V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ हमने क्या देखा, एक्शन जस्ट फिनिश हुआ है और वहाँ पे हमने यूज़ किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ओके, सो इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे हम स्ट्रक्चर? आप तो खुद भी सीख गए होंगे कि स्ट्रक्चर को कैसे फॉर्म करते हैं। कैसे कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ और हैव, और फिर हम कौन सा वर्ब यूज़ कर रहे थे? V3। सो सब्जेक्ट हैज़ हैव और साथ में V3, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इसे सेंटेंस में फ्रेम कैसे किया जाता है। ओके, सो हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये है सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, और कोई भी नाम, आपका भी नाम हो सकता है, और सिंगुलर। यहाँ हम सेकेंड रो में देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट में कौन से वर्ब की बात कर रहे थे? यही तो है वो, याद है वो लेटर, और हमारा वो सर्कल वर्ड वो था हैव और हैज़, याद आया? सो हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़। और ये V3 फॉर्म, हमने V1, V2, V3, V4 और V5 सारे फॉर्म्स को देखा। वहाँ से हम सिर्फ V3 को निकालेंगे, किस चीज़ के लिए? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करने के लिए। सो हम देख रहे हैं इसका सारा V3 फॉर्म है, और इसको अब हम सेंटेंस में बनाते हैं। आई हैव इटन, वी हैव गॉन, यू कैन टेक एनी ऑफ द वर्ड, दे हैव प्लेड, प्लूरल like you can say the children have taken books, taken the football, everything. He has eaten, she has opened, it has sung. नाम means किसी का भी नाम, like राम और श्याम, has played। कोई भी सिंगुलर वर्ड हम ले लेते हैं, अ मैन हैज़ गॉन। सो हमने इस तरह से देखा कि हैज़ और हैव का यूज़ कैसे करते हैं, सेंटेंस को फ्रेम कैसे करते हैं। याद रखना है आई, वी, यू, दे, और किसी भी प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। साथ में दूसरा फॉर्म हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर, और इसके साथ कौन सा वर्ब यूज़ होगा? हैज़, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्प करेगा सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। साथ में ये सारे V3, यानी जो यूज़ होगा वर्ब वो होगा V3। सो हमने देखा बच्चों कि कैसे सब्जेक्ट, हैज़, हैव और V3 तीनों मिलकर एक टेंस क्रिएट करते हैं, और उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस टेंस अलाउ टू टेक समथिंग फ्रॉम द पास्ट एंड ब्रिंग इट इनटू प्रेजेंट। पास्ट में होने वाली चीज़ों को प्रेजेंट में भी फील कराता है ये टेंस। कैसे फील करेंगे हम? सपोज कोई एक्सीडेंट होता है, कोई घटना घटती है, तो हम लोग उस घटने को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देखते हैं एक एक्सीडेंट है, एक घटना घटी है, और उसको आप एक सेंटेंस में फ्रेम कैसे करते हैं, मीन्स हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस। एक पिक्चर अभी आपको दिखाई जाएगी, उस पिक्चर से आप बताइए मुझे कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और याद रखेंगे आपका
जो फॉर्मेट होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो स्टार्ट करते हैं उसको, और आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम मैं देती हूँ, जिसमें आप उसको, उस पिक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए कि वहाँ पे हुआ क्या है। 2 बस आपस में टकराई हैं और एक एक्सीडेंट हुआ। सो आपको सिखाएंगे हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस। क्या करना है, पास्ट के इवेंट को लेना है और उसे फिर प्रेजेंट से कनेक्ट करना। याद है ना, कनेक्शन बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, यही तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का काम है बच्चों। हाउ टू डिस्क्राइब एन एक्सीडेंट। सेंटेंस फ्रेमिंग सीख रहे हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। तो सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान किस बात का रखेंगे, ध्यान रखेंगे यूज ऑफ हैज और हैव, और साथ में वर्ब का तीसरा फॉर्म। लेट्स बिगिन। अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट हैज जस्ट टेकन प्लेस नियर माई हाउस। हमने यूज किया है हैज, हमने यूज किया है टेकन, और आपको याद आया वो मैजिकल जस्ट। सो ये जस्ट, अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट हैज जस्ट टेकन प्लेस नियर माई हाउस। 2 buses have collided with each other. 2 buses, यानी हम बात कर रहे हैं प्लूरल की। प्लूरल के साथ हमने क्या लगा दिया है, हैव। याद आया आपको वो स्ट्रक्चर जहां हमने आपको बताया था कि प्लूरल के साथ हैव लगेगा। सो 2 buses have collided with each other. 1 bus has overturned. 1 bus has overturned, that is singular verb. 1 bus has overturned. The other has struck against an electric pole. एक दूसरी बस है जो इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई है या मे बी उसके ऑपोजिट में है। The police has already arrived on the spot. और पुलिस ऑलरेडी पहुंच चुकी है। हमने बताया था आपको इसकी पहचान, चुका है, चुकी है। सो पुलिस ऑलरेडी पहुंच चुकी। कहाँ पहुंची है, ऑन द स्पॉट, यानी जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ है। मेनी पैसेंजर्स, मेनी पैसेंजर्स फिर से प्लूरल आ रहा है। मेनी पैसेंजर्स हैव रिसीव्ड इंजरीज। बहुत सारे पैसेंजर्स इंज्योर्ड हो गए हैं, उन घायल हो गए हैं। सो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये पास्ट इवेंट है, लेकिन इसे हम, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हम प्रेजेंट में देख रहे हैं। सो हाउ डिड यू एंजॉय दैट एक्टिविटी? नाउ you can easily create your own sentences by seeing some images also. Right now you have seen some pictures and create sentences. Very good. Let's move on with the rules of present perfect tense. Simple present tense. Let's see rules of present perfect tense. Present perfect tense is used to refer to a connection of present with the past event. It refers to show an action started in the past and completed at present. It is referred to express an action that has just ended. Present perfect tense is used to express past actions when time is not given. Present perfect tense is used to express an action begins in past and is still continuing at present. Let's move on by having 2 more words. Look at these 2 sentences. I have washed my clothes. The train has arrived. Did you notice something? यहाँ हमें टाइम प्रोवाइड नहीं किया गया। एक्शन तो पास्ट में बता रहा है, I have washed my clothes. एक्शन was in past.
एंड द ट्रेन हैज़ अराइव्ड मीन्स ट्रेन चली आ रही है और अभी पहुंच गई है, लेकिन टाइम शो नहीं हो रहा। जब हमें ये पता चलता है कि टाइम एग्जैक्ट टाइम है क्या पहुंचने की, तो हम वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। लाइक आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, हेयर टाइम इज नॉट प्रोवाइडेड, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, यू कैन से अराइव्ड येट, फिर अगेन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा अगर यहाँ मैंने येट लगा दिया। नहीं भी येट लगाते हैं एट 9 PM, तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पे टाइम प्रोवाइड नहीं किया गया, और हमें पता है ये चीज़ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब टाइम प्रोवाइड नहीं होता है तो हम हैज़ और V3 का यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used to refer to a connection of present with the past events. It is used to refer to show an action started in the past but completed at present. It is used to express an action that has just ended. It expresses past actions when time is not provided. Present perfect tense is used to express an action begins in past and is still continuing at present. Move on with the next activity that will show how it continues at present but the action begins in the past. Let's start. यहाँ हम देख पा रहे हैं चार्ट किस चीज़ का है? यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस। इसका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करेंगे। सो ध्यान से इसको पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि ये फिर नेक्स्ट टेंस में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। सो देखते हैं यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे और सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, उसको देख लेते हैं। फॉर 2 hours, यहाँ पे देखिएगा फॉर 2 hours ये पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि समय बिल्कुल भी इनडेफिनिट है, अनिश्चित है। फॉर 2 hours क्लियर नहीं कर रहा है कि ये समय कितने से कितने को 2 hours में रखा गया। सो पीरियड ऑफ टाइम में जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं इनडेफिनिट, जो अनिश्चित है, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये 2 hours। वैसे ही आगे देखते हैं 30 मिनट्स, वो कौन सा 30 मिनट्स हो रहा है? 5 days 1 to 5 भी होता है, 2 to 6 भी होगा। इस तरह से आगे देखेंगे 2 weeks, अगर हम बोलेंगे 4 weeks 5 weeks तो भी उसी में चला जाएगा। मीन्स ये सारे जो वर्ड्स हैं वो इनडेफिनिट हैं, वो आते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। आइए इसको आगे देखते हैं। फॉर 6 months अगेन द सेम थिंग। फॉर मेनी ईयर्स, वो कौन सा मेनी ईयर्स है? फॉर 3 decades, वो कोई सा भी 3 decades हो सकता है, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 एनीथिंग। फॉर 3 centuries मीन्स अनिश्चित चीज़ों के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ वाइल, फॉर द लास्ट 2 years, फॉर एवर। ये सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हैं, ये पूरी लिस्ट है, आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे आप जब कभी भी सेंटेंस बनाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे, तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पे फॉर का यूज़ करें, कहाँ पे सिंस का यूज़ करें। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको पूरा लिस्ट दे दें, ताकि आप इसको एक बार में अगर याद कर जाएं और इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ तो आपको आसानी हो। नेक्स्ट बात हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, यानी ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम जो इनडेफिनिट है, लेकिन यह पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे डेफिनिट बातें होंगी। मीन्स निश्चित समय के लिए अगर कुछ किया जाता, हमें पता होता है कि ये चीज़ ये टाइम पे ही होगा। ठीक है, सो देखते हैं। सिंस मंडे, नाउ यू हैव क्लियर कि मंडे यानी वो दिन आपको बता दिया गया है। सिंस जनवरी, अगेन
ये भी डेफिनेट पीरियड को शो करता है। सिंस 1980, सिंस 5 o'clock। आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में कि यहाँ पे आपको वो पता ही नहीं चल रहा कब से कब तक, और यहाँ आप बिल्कुल निश्चित हैं कि सिंस 7 PM, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट ईयर, सिंस मॉर्निंग, सिंस द बिगिनिंग, सिंस विंटर, समर, ऑटम, सिंस हिज और हर चाइल्डहुड, सिंस ईस्टर, होली, दिवाली, ईद। ये कंफर्म कर दिया गया है, ये डेफिनेट बता दिया गया है कि सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे। सो आपको तो क्लियर हो गया होगा कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे। एक बार फिर से चेक करते हैं, फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे हम, पीरियड ऑफ टाइम में या पॉइंट ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का यूज़ होता है और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज़ होगा जो डेफिनेट है। इसको कुछ और सेंटेंसेस बना के देखते हैं। लेट्स मूव ऑन मेकिंग फ्यू सेंटेंसेस। मीन्स हाउ एंड व्हेन सिंस और फॉर विल बी यूज्ड। ओके, लेट्स बिगिन। माय फैमिली हैज लिव्ड हियर डैश 1990। सो इस लिस्ट में देखेंगे 1990, 1980, 1990, ये सब यहाँ जाएगा। सो क्या लगेगा, फॉर या सिंस? क्या लगा है, सिंस। सो हम लगाते हैं यहाँ पे सिंस। स्टिकी नोट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने सिंस लगा दिया। और बच्चों ये आपने ही करेक्ट आंसर दिया है। आई हैव नोन हिम डैश 3 years। 3 years। अभी तो हम ये लिस्ट से देखकर आंसर कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये लिस्ट बिल्कुल नहीं आपके सामने होगी और आपको देने होंगे ये आंसर्स। सो आई हैव नोन हिम 3 years। कहाँ है 3 years? ढूंढते हैं। 3 years, many years। सो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, फॉर। सो हम इसका यूज करते हैं। फॉर। आई हैव नोन हिम फॉर 3 years। नेक्स्ट देखते हैं। शी हैज टॉट इन दिस स्कूल डैश 2 decades। अब यहाँ चल के देखेंगे 2 decades, 1 decades क्या सिंस में है? नहीं। क्या यहाँ है? यस, फॉर 3 decades, 2 decades। तो इसमें हमने क्या लगाया, फॉर। तो लगाते हैं फॉर। इसी स्टिकी नोट्स के थ्रू हम यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं अच्छे से इस चीज को। ही हैज बीन इल मंडे। अब हम यहाँ आ गए, कहाँ है मंडे? मिल गया हमें यहाँ मंडे, और हम क्या लगाएंगे, सिंस। सो लगाइए सिंस। नेक्स्ट, ही हैज बीन हियर 9 AM। देयर इज नो कंफ्यूजन, 9 AM ढूंढ लिया हमने। कहाँ है ये? 7 PM, 9 AM, एवरीथिंग इज हियर। सो हम लगाएंगे सिंस। सो कैसी लगी बच्चों ये एक्टिविटी, जहां हमने सिंस और फॉर का यूज अलग अलग सेंटेंस में देखा। लेकिन याद रहे ये सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज किया गया। सो अभी सिंस और फॉर का यूज़ जब हम देख रहे थे, वो था एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और कंटिन्यू हो गया प्रेजेंट में। लेट्स मूव ऑन विद ऑल द 3 टेंसेस। अब तो आपने पढ़ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। जब आप इन तीनों टेंस को जान चुके हैं, सो अभी हम एक लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं कि कौन से टेंस कहाँ जाता है और हम उसे कैसे अलग कर पाते हैं। कंपैरिजन करेंगे तीनों टेंस को 1 by 1 एक सेंटेंस के साथ।
हमारा पहला सेंटेंस है शी राइट्स अ लेटर। तो क्या लगता है, शी राइट्स अ लेटर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसका बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। ठीक है, और वही प्रेजेंट परफेक्ट में चलेंगे और हम बनाएंगे सेंटेंस हैज़ और हैव के साथ, वो हो जाएगा शी हैज़ रिटन अ लेटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई बाई अ पेन। इफ यू आर टेकिंग बाई, इट मीन्स इट विल गो विथ simple present and we will convert it in present continuous. What you are going to write? Yes, I am buying a pen. And the third one, definitely you have read, I have bought a pen. Bought buy का थर्ड फॉर्म हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू फिनिश योर वर्क। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद इसको कंटिन्यूअस में बनाएंगे, यू आर फिनिशिंग योर वर्क, क्योंकि हम कंटिन्यूअस में आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं, सो यू आर फिनिशिंग योर वर्क। और अब इसको हैज़ हैव के साथ लगा के, क्योंकि यहाँ पे यू है सो यूज़ करेंगे हम हैव, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। उसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस को भी देखेंगे। हमारा अगला सेंटेंस होगा, ही ओपन्स अ बुक। ओपन्स अ बुक को चेंज करेंगे कंटिन्यूअस में, ही इज़ ओपनिंग अ बुक। ठीक उसी तरह से इसको कंटिन्यूअस को बनाएंगे हम परफेक्ट में, ही हैज़ ओपन्ड अ बुक। एक आखिरी सेंटेंस लेते हैं, द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। डेफिनेटली यहाँ पे V5 है, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। इसे हम कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो बच्चों इसको प्रेजेंट परफेक्ट में खुद से कन्वर्ट कर दे, द गर्ल हैज़ संग अ सॉन्ग। होप आप एक सेंटेंस को 3 तरह से यूज़ करना सीख गए होंगे, क्योंकि आपने 3 टेंस को जाना है। आगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी पढ़ेंगे, लेकिन अगले क्लास में। आज के क्लास में हमने पढ़ा टाइम एंड टेंस एंड इट्स टाइप्स। टाइम एंड टेंस हैज़ 3 काइंड्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेट्स मूव ऑन। Present tense has 4 types. That is simple present, you have already read. Present continuous, you did it. And today you have read present perfect tense. In the next class we will continue with present perfect continuous, but present perfect tense will have some rules. The first one is, it has immediate past experiences. उसको एग्जाम्पल में देखेंगे, I have just finished my work. इसके दूसरे रूल्स को देखते हैं, एक्शन इन पास्ट बट consequences in present. उसको एग्जाम्पल में कैसे देखते हैं, he has solved the sum. Next point, past actions but टाइम इज़ नॉट प्रोवाइडेड। याद है हमने बोर्ड वर्क किया था इस चीज़ के लिए, और उसका एग्जाम्पल, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। लास्ट में हमने सेंस और फॉर का चार्ट देखा था और उसे स्टिकी नोट से हमने सेंटेंस बनाया था, आपने देखा होगा। और आपने वो एक्टिविटी खुद से भी करी थी जहाँ पे हमने सेंस और फॉर को यूज़ किया था। वहाँ हम देखते हैं कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूइंग सिचुएशन है, लेकिन अनफिनिश्ड एक्शन है जहाँ पे काम हो ही रहा है। इट मीन्स आई हैव वॉच्ड। जिस सेंस और फॉर के चार्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ हमने क्या पढ़ा था, कंटिन्यूइंग सिचुएशंस थी जहाँ पे एक्शन फिनिश नहीं हुआ था, अनफिनिश्ड एक्शन की बात की थी हमने। और इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई हैव वर्कड हियर फॉर 2 years. सो बच्चों
यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हमने वैरायटीज ऑफ एक्टिविटीज़ के साथ आज फिनिश किया। होप आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस सेशन। होप यू enjoyed this activity. All these activities are just for you. Remember the magical just and everything. You can do it by yourself. You can have practice a lot. You must have grammar book. You must practice with that book. Stay safe, stay healthy. Thank you. ओहो, मैं तो खेल खेल के भी थक गई। अब्बा, ओ तारा। मैं बोर हो रही हूँ। ओ तारा बोर हो रही है। तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना। देखिए तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अब्बा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है? कोरोना? इजी। कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं। उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदें निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? आपने बताया था। हाँ, याद आ गया। कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट, क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये मुकुट या क्राउन जैसा लगता है, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? तो उसे 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अब्बा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खलाश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अब्बा। पर अब देखते हैं कि आप कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अब्बा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर यह बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे? हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह, नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अब्बा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है? और हाँ अब्बा, खांसी,
बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। हाँ? तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना, सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और 1 मीटर की दूरी से बात करनी है, ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ पा, इसे कहते हैं सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं।